السلام علیکم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا 2 روزہ دورہ ایران مکمل۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اپنے دورے میں ایران کی اعلیٰ سول و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ آرمی چیف نے ایران کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد بغیری سے ملاقات کی، جس میں دہشت گردی کو خطے اور دونوں ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ قرار دیا گیا۔ ملاقات میں اطلاعات کے تبادلے اور مشترکہ کارروائیوں میں دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کیا گیا۔ آرمی چیف نے ایرانی صدر اور وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہ سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک ایران تعلقات، علاقائی امن و سلامتی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں ایرانی مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ ذکر کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا، جنہوں نے مقررہ وقت پر الیکشن کے انعقاد کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں ہماری حکومت اگلے ماہ مدت پوری کر لے گی۔ لیپ ٹاپ طلبہ پر احسان نہیں، قابلیت کا اعتراف ہے۔ تمام طلبہ کو لیپ ٹاپ صرف میرٹ کی بنیاد پر دیے۔ میرٹ کی پالیسی ہی پاکستان کو عظیم ملک بنائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیالکوٹ کا دورہ، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ کہا کہ مشکل حالات میں لیپ ٹاپس کے لیے $45 ملین دینے پر وزیر خزانہ کا مشکور ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں مقررہ وقت پر الیکشن کے انعقاد کا عندیہ بھی دے دیا۔ کہتے ہیں ہماری اگلی حکومت اگلے ماہ مدت پوری کر لے گی۔ ہماری حکومت ہے جو کہ اگلے ماہ وہ اپنا مدت مکمل کر لے گی، اور مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انٹرم گورنمنٹ آئے گی، اور اس کے بعد الیکشن میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی موقع دے، اس حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ تعلیم کے میدان میں وہ وسائل کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر اعظم نے ملک کو مشکلات اور چیلنجز سے نکالنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ کہ پچھلے 13 ماہ میں شہباز شریف نے جو بصیرت وزیر اعظم جو رول نبھایا ہے، وہ شاید ہی پاکستان کا کوئی اور سیاستدان اس رول کو نبھا سکتا تھا۔ وزیر اعظم سے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی قیادت میں سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ اور چیمبر آف کامرس کے صدر اور دیگر عہدیداران نے ملاقات کی۔ وفد نے IMF معاہدے کی حتمی منظوری اور معاشی بحالی پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ملکی مفادات کے لیے سخت فیصلوں میں شانہ بشانہ کھڑے رہنے پر وفد کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کو درپیش مسائل کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ایکسپورٹرز کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے ون ونڈو آپریشن سہولت مراکز کے قیام اور اس سے متعلقہ پالیسی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کا نوجوانوں میں لون چیکس دینے کی تقریب سے خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص کو سازش کے تحت اقتدار میں بٹھایا گیا۔ کیا چیئرمین PTI اور ہٹلر میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ ملک کے خلاف سازشیں دفن ہو گئیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو بے بنیاد مقدمات میں سزا دی گئی۔ عوام نے دوبارہ موقع دیا تو ملک کا نقشہ بدل دیں گے۔ خانہ کعبہ کی تصویر میں جو گھڑی کا سکینڈل 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ، وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا۔ چینی کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا۔ گندم کا سکینڈل، BRT کا اربوں خربوں کا سکینڈل، معلم جبا کا اربوں کا سکینڈل، کابینہ سے دھوکہ کیا گیا، وہ نواز شریف کے زمانے میں تو نہیں ہوا۔ انہی حقائق کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور اگر آپ نے نواز شریف کو موقع دیا اگلے الیکشن میں، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف، میں اور ہماری پوری ٹیم مل کر ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کے ہم دور پر لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ترقی کرتے پاکستان کو ایک اناڑی کے سپرد کر دیا گیا۔ اناڑی نے تجربے کرتے ہوئے سب کچھ برباد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشت کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات اور سخت فیصلے کیے۔ اتحادی حکومت کی کاوشوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ وہ سیالکوٹ میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک سازش کر کے ایک ہستی بستی حکومت کو جو پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈال چکی تھی، پاکستان جس کے لیے CPEC جیسا منصوبہ گیم چینجر بن چکا تھا، وہ پاکستان جس کو پوری دنیا میں کہا جا رہا تھا کہ یہ 5 تیز ترین ترقی کرنے والی معیشتوں میں
शामिल हो गया है। नवाज शरीफ से इस तरक्की की चाबी को छीनकर एक ऐसे शख्स के सुपुर्द कर दिया गया कि जिसने कभी जिंदगी में यूनियन काउंसिल भी नहीं चलाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में हमने जो मेहनत की है, पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं कि अवाम शदीद महंगाई का सामना कर रहे हैं। बिजली के बिल, आटा, बच्चों के पढ़ाने की फीस देना बहुत मुश्किल हो गया। तफसीलात सुहेब हसन काज़मी की इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज UC-33 के साबिक चेयरमैन जाहिद हुसैन की रिहाइशगाह पर आज़म क्लॉथ मार्केट के सदर चौधरी एहसान इलाही की वफात पर अहले खाना से इजहार अफसोस के लिए पहुँचे। मरहूम के दर्जात की बुलंदी व मग़फ़रत के लिए फातिहा ख़्वानी की। साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि PTI चेयरमैन 100 रुपये पेट्रोल सस्ता करके IMF के मुआहदे से निकल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद आगे बढ़कर बात न करते तो एटमी क़ुव्वत वाला मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। ये कोशिश रही कि हम इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लें, जहाँ पर लोगों की मुआशी मुश्किलात हैं। ये भी एक मुसलमान हकीकत है कि अगर हुकूमत काविश ना करती, वज़ीर आज़म जो हैं वो ख़ुद आगे बढ़कर मुलाकात ना करते, हर जगह जो है वो पाकिस्तान का केस ना प्लीड करते, तो शायद खुदा न खास्ता ये एटमी क़ुव्वत जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता। हमजा शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि PTI चेयरमैन ने पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ किया। इस मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ इंतखाबात पर इन्हिसार करता है। कोई भी हुकूमत हो, मुआशी पॉलिसियों को मुस्तकिल होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक मुआहिदा करना चाहिए, एक मैग्ना कार्टा करना चाहिए, मुआशी पॉलिसियों का तसलसल होना चाहिए। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर हमजा शहबाज का कहना था, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि आइंदा इंतखाबात वक्त पर कराए। बतौर वजीर आला मैंने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का मंसूबा दिया था। जो भी हुकूमत आती है, दुआ है कि वो अवाम की बहबूद के लिए काम करे। कैमरामैन सज्जाद अली के साथ ज़ुहैब हसन काज़मी, PNN लाहौर। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि हमने सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगाकर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पेश किया। हमें इल्म था चेयरमैन PTI मुल्क को मज़ीद तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। चेयरमैन PTI पहला वज़ीर आज़म है जिसे आइनी तरीके से घर भेजा गया। जहाज़ में लोगों को बिठाकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम की गई थी। इसराइल चीख रहा है कि चेयरमैन PTI के साथ ज़्यादती हो रही है। मुल्क की तारीख में कभी फ़ौजी तनसीबात पर हमले नहीं किए गए। उनका कोई जोल है या कमी है कि इन हालात में हमने एक कानूनी आईनी तरीके से एक शख्स को कुर्सी से हटवाया जिसके वो काबिल भी नहीं था, उसके पास लोग भी पूरे नहीं थे, तो हमने एक मूवमेंट की और उस वक्त हालात इंतहाई खराब थे जो कि हमें पता था कि बाद में मजीद भी खराब होने। हमने अपना नुकसान, हमें जानबूझकर कि जी हमें मुश्किल हालात का सामना होगा, हम जल्द अज जल्द उसको वहां से हटाना चाहते थे, क्योंकि ये आखिरी 12-14 महीने वो बिल्कुल ही इस मुल्क को पट्टा बिठाने और तबाही की तरफ ले जाना चाहता था। कराची को पानी फराहम करने वाले धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 72 इंच कुतर की पाइप लाइन धमाके से फट गई। कराची को 7 करोड़ गैलन से ज़ायद पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में पानी का बहरान मजीद संगीन हो गया। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, कराची में पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन नंबर 5 धमाके से फट गई। पाइपलाइन फटने से कराची को पानी फराहम करने वाले 7 पंप बंद हो गए। 7 पंप बंद होने से कराची को 7 करोड़ गैलन से ज्यादा पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिससे लांधी, मलीर, कोरंगी, शाह लतीफ टाउन, कायदाबाद, गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि पाइपलाइन की मुरम्मत का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मुतासरा पाइपलाइन की मुरम्मत करके जल्द पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का पानी चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन। मंगूपीर थाने में 14 FIRs दर्ज करा दी। वो कहते हैं कि पानी चोरी के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने गुज़श्ता रोज़ मंगोपीर और मुत्तसिल इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 26 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार कराए थे। मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ पानी चोरों के खिलाफ 14 मुकदमा दर्ज करा दिए। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। अब तक 60 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स 3 रोज़ में मिसमार किए जा चुके हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की बंदिश के बाद शहर में पानी की तकसीम की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। नैब तरमीमी कानून नाफिज होने के बाद नैब के दायरा इख्तियार से खारिज करप्शन केसेस बंद करने का सिलसिला शुरू। चेयरमैन नैब ने 16 विंड पावर मंसूबों की तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी। नैब नए कानून के तहत विंड पावर मंसूबे में करप्शन की तहकीकात का मजाज नहीं रहा। चेयरमैन नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी। नैब का फैसला उन केसेस की किसी दीगर एजेंसी या फोरम से तहकीकात को मुतासर नहीं करेगा। नैब ने सेक्रेटरी वजारत तवानाई को खत लिख कर रिकॉर्ड की हवालगी के लिए अफसर का नाम तलब कर दिया। खबर आपको दें, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल से नौमौलूद बच्ची के अगवा का मामला। रावलपिंडी पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई। अस्पताल से बच्ची को ले जाने वाले अफराद को ट्रेस करके बच्ची को हकीकी वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल से नौमौलूद बच्ची के अगवा का मामला। पुलिस को नौमौलूद बच्ची की फैमिली ने इतला दी कि अस्पताल की नर्सरी से इनकी बच्ची अगवा हो गई है। वारिस खान पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद से बच्ची को ले जाने वाली फैमिली को ट्रेस कर लिया गया। वारिस खान पुलिस ने बच्ची को तलागंज से वापस लाकर हकीकी वालिदैन के हवाले कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी के MS का कहना है कि कल एक फैमिली अपनी बच्ची की जगह दूसरी बच्ची ले गई थी। जो बच्ची एक गलती से कलर सईदा जो है वो तलागंज वाली जो अटेंडेंट से वो ले गए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची बाजियाब हो गई है। पुलिस और अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इब्तदाई तौर पर गलती से बच्ची को ले जाने का मामला सामने आया है। चल्लास में शाहराए कराकुरम पर सयाहों की गाड़ी को हादसा। जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 5 हो गई। मरने वाले अफराद में 4 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। चल्लास के इलाके थेलेची में होने वाले हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए। जगलोट अस्पताल में जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद गिलगित पहुंचा दिया गया। हादसे का शिकार गाड़ी में सवार अफराद का ताल्लुक पंजाब से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बस हादसे पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात देने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद ट्रेल 3 में लड़की से मुबैना ज्यादती के केस का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस के मुताबिक मुद्दइया से मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक नहीं हुई है। 13 जुलाई के रोज़ एक जवां साला लड़की ने FIR दर्ज करवाई थी कि मुलजिम ने उसे नौकरी दिलवाने का झांसा देकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की थी। अब पुलिस का यह कहना है कि इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से मुबैना ज्यादती के शवाहिद नहीं पाए गए, जबकि पुलिस का यह भी कहना है कि मागला ट्रेल्स महफूज हैं, जिनकी ड्रोन से निगरानी और मौसर गर्श से यकीनी बनाया जाता है। इस्लामाबाद पुलिस का यह भी कहना है कि वक़ुआ की तफ्तीश मेरिट पर अमल में लाई जा रही है। इब्तदाई तफ्तीश से यह भी पता चला कि मुद्दइया और मुलजिम के माबैन पहले से दोस्ती थी और वे एक दूसरे को जानते भी थे। कराची पापोश नगर पुलिस ने पाकिस्तानी निजात कनेडियन के कत्ल में मुलव्वस दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर लिया। नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर मुलजिमान ने बुजुर्ग शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। लांडी में भी फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात कराची से रजब अली की इस रिपोर्ट में। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पापोश नगर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी निजात कनेडियन के कत्ल में मुलव्वस दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान जहीर और खलील ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर दिया है। SSP सेंट्रल के मुताबिक मकतूल अमीन अलवी बच्चों को शॉपिंग के लिए लेकर निकला था। मनी चेंजर से रकम तब्दील करवाने के बाद मुलजिमान ने लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर मुलजिमान ने अमीन अलवी को गोली मार दी। दूसरी जानिब शहर कायद में लूट मार की वारदातों में कमी न आ सकी। नॉर्थ कराची में मज़ाहमत पर डाकुओं ने बुजुर्ग शहरी को जख्मी कर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक और जेहलुम में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA की जानिब से मौसमियाती सूरत हाल से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDMA की जानिब से जारी अलर्ट के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरावाला,
गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और कसूर में भी बारिश मुतवक्के है। शहरी बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुसाफिर और सयाह हजरात मौसमी सूरत हाल से मुकम्मल आगाह रहें। DG PDM इमरान कुरैशी की जानिब से निकासी आप के लिए टीमों को नशेबी इलाकों में बर वक्त मौजूद रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। अहम शाहराहें और गली महल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। निकासी आब के बर वक्त इंतजामात ना होने पर शहरियों को परेशानी का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अलसुब होने वाली बारिश ने गुजरांवाला शहर में पानी ही पानी कर दिया। वक्फे वक्फे से जारी रहने वाली बारिश ने नशेबी इलाके डबो दिए। गुजरांवाला में सबसे ज्यादा बारिश घंटा घर चौक पर 138 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सैटेलाइट टाउन के इलाके में 105, सियालकोट रोड पर 78 मिलीमीटर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से सियालकोट रोड, निगार चौक, मुनीर चौक और जिना स्टेडियम नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। DHQ गुजरांवाला, कश्मीर रोड, मॉडल टाउन से मलहका इलाके भी पानी में डूब गए। गुजरांवाला शहर में मजमूई तौर पर 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा एहलकार पानी की निकासी के लिए मसरूफ रहे। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश का इम्कान भी जाहिर कर। पंजाब के कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी का जोर तो टूट गया, लेकिन इसके साथ साथ इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। सड़कों पर पानी जमा है और बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून का दूसरा स्पेल। पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश कहीं रहमत तो कहीं जहमत बन गई। छांगा मांगा और इसके गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश और निकासी आब का बेहतर इंतजाम न होने की वजह से सड़कें, गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। लोग अपनी मदद आब के तहत घरों से पानी निकालते रहे, जबकि कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए। ननकाना साहिब, पत्तोकी और 18 हजारी में भी होने वाली तेज रफ्तार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पत्तोकी में बारिश से जल थल एक हो गया। उधर उकाड़ा और इससे मुल्हिका इलाकों में भी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। फीडर्स ट्रिप कर गए, सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार रहे, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला फील्ड से गायब रहा। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आगे बढ़ते हुए कराची का रुख करते हैं, जहां पे आटे की कीमत में इजाफा हो गया है। शहर में चक्की का आटा 160 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इतना महंगा आटा कैसे खरीदा जाए। रजब अली की रिपोर्ट में मजीद जानिए। कराची में महंगाई की लहर, आटे की कीमत में भी इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 1600 रुपए में फरोख्त होने लगा। दुकानदारों के मुताबिक स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के बायस आटे के निर्खों में इजाफा हो रहा है। आटा महंगा हो गया ना, चीनी महंगी हो गई ना, 130 रुपए चीनी हो गई है और 1700-1500 रुपए का जो है कट्टा आटे का है। अब गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा, कैसे पूरा करेगा? आटे की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी खासे परेशान हैं। 160 रुपए किलो आटा हो गया है, सही है। 240 रुपए किलो बेसन है, सही है। अब इस तरह महंगाई होगी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो पिछले दफा मैं 1300 रुपए सामान ले गई थी, MS 2000 रुपए सामान लेकर जा रही हूँ। ये कहाँ से पूरा करेंगे हम? आदमी परेशान हो गया। बजट क्या होता महीने को, जब यहाँ मार्केट आओ तो बजट कुछ और हो जाता है। शहरियों की जानिब से हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन हामिद राव के साथ रजब अली, PNN कराची। गंदम स्टॉक और चीनी माफिया एक बार फिर सरगर्म। मुल्क भर में चीनी और आटे की कीमत में आज खुद इजाफा कर दिया गया। चीनी 145 और आटा 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। महंगाई से परेशान शहरी आए रोज कीमतें बढ़ने पर बिलबिला उठे। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। इंतजामिया की लापरवाही और मुनाफाखोरों का लालच बढ़ गया। मुल्क भर में आटे और चीनी की कीमत में अज खुद इजाफा कर दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर, नवाबशाह और उमरकोट में चीनी और आटा जायद कीमत पर फरोख्त होने लगा। लाहौर में चीनी 145 रुपए जबकि आटा 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मुल्तान में 15 किलो आटे के थैले की कीमत 2100 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए हो गई। परचून में 15 किलो का थैला 2400 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। सक्खर में आटा 160 और चीनी 140 रुपए फी किलो दस्तयाब है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी का स्टॉक खत्म हो चुका है। नवाबशाह और उमरकोट में भी गंदम स्टॉक माफिया सरगर्म है। मार्केट में आटा 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावों की बजाय अमली इक़दामात करे। मैं आटा लेने मार्केट में आया हूँ। आटा बहुत महंगा हो गया है। 20 किलो का थैला जो 3000 से ऊपर चला गया और जो 15 किलो का थैला है वो जो है 15-2200
यहाँ तक वो मिल रहा है। जीना मुहाल हो गया सर। आटे का तो थैला जो हमें मिलता था 1500 रुपए का, वो 2000 का हो गया है। तनख्वाहें हमारी वहीं खड़ी हैं। मुलाजिम को कहते हैं तनख्वाह बढ़ाएं, वो कहते हैं नहीं बेटा इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, आप छोड़िए जाना है तो। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह बारिशों से होने वाली किल्लत को करार दिया, लेकिन इंतजामिया ताहाल खामोश तमाशाई बनी हुई है।